یار بے وفا، یہ ہے رسم دوستی. خداوند جناب اخناتون کو سلامت رکھے. میں جناب فرما رواحی کے فرامین کی بجاوری میں مشغول تھا. کون فرما روا؟ کیسے فرامین؟ یہ تو وہ ذمہ داری ہے جو آپ کے خدا نے آپ کو سونپی ہے، نہ کہ میں نے. فرما روا حقیقی تو وہ ہے، اور وہی ہے جس نے آپ کو مردم مصر کی نجات کے لیے بھیجا ہے. اور ہمارے بنا روز کیسے ہیں؟ درود بر عزیز مصر جناب یوزارسیف. تعجب کی بات ہے، جناب یوزارسیف کو اپنے قدیمی دوست اب تک یاد ہیں. بھول جانا ہمارا شیوا نہیں. حاضر خدمت ہوں تاکہ کہیں بھلا نہ دیا جاؤں. میں یہاں اس لیے آیا تھا تاکہ تمام امور کی گزارشات پیش کر سکوں. یقیناً گوداموں کی تعمیر اور گندم کی ذخیرہ سازی سے متعلق مسائل ہوں گے، یا شاید ضرورت مندوں اور کاشتکاروں سے متعلق، اور یا پھر کاہنان معبد اور ان کی سرکشیوں سے متعلق. ایک ذمہ دار شخص کو ذمہ داریوں کی انجام دہی کے سوا اور کیا کام ہو سکتا ہے؟ بلا شبہ یہ بہت اہم مسائل ہیں. مصر کے ان مسائل کو بعد کے لیے اٹھا رکھیں. فی الحال ہم نے آپ کو کسی اور مقصد کے تحت یہاں بلایا ہے. لیکن مجھے تو گندم کی ذخیرہ سازی اور کاہنوں کی سازشوں سے متعلق بہت کچھ ہے جو آپ کی گوش گزار کرنا ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ نہ صرف مصر کو درپیش مسائل سے بخوبی نمٹ سکتے ہیں، بلکہ کاہنوں اور ان کی سازشوں سے بھی. ویسے بھی ان امور پر بعد میں بات کی جا سکتی ہے. آپ آمون اور اس کے معبد کے لیے منصوبے بنائیے، اور میں اور اخناتون آپ کے لیے. خود کو زیادہ زحمت میں مت ڈالیں. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو اس مجردی اور تنہائی کی زندگی سے نجات دلائیں. اچھا، تو اصل بات یہ ہے اب تک میں نے شادی کے حوالے سے سوچا نہیں. ہمارا مشورہ ہے کہ اب آپ اس کے بارے میں ضرور سوچیں. آسنات دختر آتون سس، یکتا پرستوں کے کاہن، معبد آتون کی کاہن اعظم. ان کی بیٹی ایک اچھی اور خوبصورت لڑکی ہے. تو ناچیز کو منفیس سے فوری طلب کرنے کی وجہ یہ تھی. آپ آج ہی معبد آتون کے کاہن اعظم جناب آتون سس کے پاس جائیے اور ان کی بیٹی آسنات کو دیکھ لیجیے. اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ کیوں نہ ہو، آسنات خوبرو بھی ہے اور یکتا پرست بھی. بالکل. آپ کو جلد از جلد شادی کرنا ہوگی. یہ ایک حکومتی فرمان ہے اور اس پر فوری عمل درآمد ہونا چاہیے. جی ضرور عالی جناب، ضرور. میں بوڑھی اور پشمردہ ہو گئی ہوں، ہے نا؟ میں نے چہرے اور پیشانی کی جھریاں دیکھی، بدصورت ہو گئی ہوں، ہے نا؟ لیکن آپ کے چہرے پر اب بھی بزرگی اور وجاہت کے آثار ہیں. تو کیا یوزارسیف میری طرف دیکھنا پسند کرے گا؟ آپ اب بھی مہربان اور چاہے جانے کے قابل ہیں بانو، پریشان مت ہوئیے. نہیں، یوزارسیف خوبرو اور جوان ہے، وہ میری طرف نگاہ بھی نہیں کرے گا. 15 سال مسلسل کریا ازاری ایک پتھر کو بھی موم کر دیا. آپ نے تو اپنی پوری جوانی یوزارسیف پر فدا کر دی. میں نے اپنی جوانی یوزارسیف پر فدا کر دی. اے کاش میں جان فدا کر دیتی. میرا درد تو یہ ہے وہ یہ نہیں جانتا کہ میں اس کی جدائی میں
क्या क्या सह रही हूँ। काश वो ये जान पाता, काश वो ये जान जाता, काश। यूसुफ, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। यूसुफ, मेरी मदद करो। यूसुफ, मेरी मदद करो। आप कौन हैं? मुझसे क्या चाहती हैं? ये औरत कौन थी और मुझसे क्या चाहती थी? उसका चेहरा वाज़ेह क्यों नहीं दिखाई दिया?
कभी ऐसा हो सकता है कि मेरा यूसुफ किसी दिन इसी रास्ते से वापस लौट आए। खुदा बंदा, जे मेरा यूसुफ वापस लौटा दे। गुज़श्ता शब मुझे आपके चेहरे पर अजीब सी अफसुर्दगी के आसार दिखाई दिए। मैं इसकी वजह पूछ सकती हूँ? बाप की दूरी की वजह से। काश आज वो मेरे पास होते। तकरीबन 30 साल होने को आए मैं उनसे दूर हूं और हर रोज मेरी रूह उनकी जानिब परवास करती है। मगर वो कहाँ हैं? आप उनसे मिलने क्यों नहीं जाते या उन्हें अपने पास क्यों नहीं बुला लेते? दरअसल मेरा किनान से ताल्लुक है और यहां से 1 माह की मुसाफत है। मैंने बारहा चाहा कि उनसे मिलने जाऊं और उन्हें अपने हालात से बाखबर करूं, लेकिन शायद अभी उसका वक्त नहीं आया। अभी अहले मिस्र को मेरी अशद जरूरत है और वो इस वक्त मुश्किल में है। इन्हें जिस्मानी और रूहानी ग़िज़ा की जरूरत है और मैं अब तक उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। मुझे खौफ है अगर मैं अपने बाबा और दीगर अहले खाना के फिक्र में रहा तो अपने फराइज के दुरुस्त बजावरी से गाफिल न हो जाऊं और मुझ पर आयद जिम्मेदारी नामुकम्मल न रह जाए। लेकिन कब तक? वो आपके वालिद और खानदान वाले हैं, उन्हें आपके पास होना चाहिए। एक रोज आएगा जब वो यहां होंगे, लेकिन तब तक मुझे उनकी जुदाई का दर्द सहना होगा। मुझे ये परेशानी है कि अगर मैं बाबा को अपने अहवाल से बाखबर कर दूं तो कहीं वो मेरे भाइयों को मुकस्सर जानकर उन पर नफरीन न कर दें, बिलखुसूस जबकि मैं जानता हूं कि बनी इसराइल अभी तक ताइब नहीं हुए हैं। जब तक इरादा खुदाबंदी इस हिज्र फराक पर है मैं भी सब्र करूंगा। ये बनी इसराइल कौन है? इसराइल मेरे वालिद याकूब नबी की कुनियत है और मुझे और मेरे भाइयों को बनी इसराइल कहा जाता है। गोया नबी खुदा अपने भाइयों यानी बनी इसराइल के हाथों दुखी हैं, जिसके बारे में याकूब नबी को कुछ नहीं मालूम। क्या मैं इसकी वजह पूछ सकती हूँ? वक्त आने पर जान जाएंगी। मैं जानती हूँ आप मर्दों के सीनों में कई ऐसे राज होते हैं कि जिन्हें आप बताना पसंद नहीं करते। मैं इस सवाल की बाबत आपसे माजरत चाहती हूँ। हर राज एक दिन फाश होकर रहेगा, वक्त आने पर सब जान जाएंगी। बरसों पहले मैंने आपसे कहा था कि एक साहिर मोहब्बत ने पेशन गोई की थी कि यूसुफ आपके मुस्तकबिल और ईमान के लिए खतरा बन जाएगा। यूसुफ भूल जाएं, मैंने बारहा ये बात आपसे कही, लेकिन आपने कोई तवज्जो नहीं दी। आपने पूरी जिंदगी यूसुफ की खातिर जाया कर दी।
लेकिन क्या हासिल को भूल जाए, कुछ अपनी फिक्र करे, मेरी जुलेखा का ख्याल। अब इस लड़ाई कभी क्या अरे मामा, वो मेरी मानी सुहागन थी, वो मेरी खात्मा थी, मेरी माँ थी। अब मैं अपना करती थी और अपना हाल किससे कहूँ? सब्र कीजिए बहनों, आपको खुदाओं का वास्ता सब्र कीजिए। आप मेरी हमदर्द तो हमराज थी, मैं आपको अपने पास लाई थी ताकि समय मर्ग मेरी मुन्नी सो हमदर्द रहे। आपको खुदाओं का वास्ता है बहनों, सब्र कीजिए। यूसुफ की जुदाई का दुख क्या कम था जो अब कारी मामा की मौत के गम का भी इजाफा हो गया। ये तमाम खुदा कहाँ है? आखिर क्यों ये तमाम खुदा कारी मामा से भी ज्यादा बेजान और उनसे भी ज्यादा साकित तो खामोश होकर मेरे गमों अंदों के तमाशाई बने हुए हैं। मैं कैसे सब्र करूं? जाओ कारी मामा के लिए ताबूत का इंतजाम करो। हमेशा साई की तरह मेरे साथ साथ रहती थी। मैं रातों को आराम से सोया करती थी और वो एक माँ की तरह जाग कर मेरा ख्याल रखा करती थी। आराम से सो जाइए कारी मामा, आराम से, आराम से। अब आपको जुलेखा की कभी कचहरी बातें सुनने को नहीं मिलेगी। दाढ़ी वाला भाई, दाढ़ी वाला। ये किसका जनाजा है? कारी मामा। बेचारी कारी मामा, कैसी बेचारगी है। बानो जुलेखा की दस्ते राज थी, क्या शान शौकत हुआ करती थी उनकी। यानी कस्म में अब कोई भी नहीं रहा। मेरा भी यही ख्याल है। बेहतरीन मौका है, हमें चलकर देखना चाहिए। अफसोस कि हम इसे ले जा नहीं सकते। हाँ वाकई।
तुम लोग वापस जाओ, कस्र में कोई नहीं है। क्या कर रहे हो? आहिस्ता। ये पूतीपार का खसर है या रूहों का? अरे यहाँ तो हर जगह जाला तना हुआ है। चलो, इस जगह तो कुछ भी नहीं है। चलो। फिलहाल उन्हें कुछ मत बताना, ये सुनकर वो मजीद दुखी हो जाएंगी। अगर बाद में पता चला तो कहीं वो हम पर शक न कर बैठे। क्या हुआ? यहाँ क्यों जमा है? आपके लिए एक बुरी खबर है बानो। यानी बुरा हादसा पेश आया है? कस्र में चोरी हो गई है।
कोई नई बात नहीं। वैसे अब क्या चुरा ले गए? जब हम वापस लौटे तो दो आदमी कसर से बाहर निकले और तेजी से भाग गए। हम उन्हें नहीं पहचान सके। गालिबन वो दोनों कोई आवारा चोर थे। हम देर से पहुंचे बानो, इसलिए हम कुछ भी न कर सके। हम में से किसी को तो यहाँ रहना चाहिए था। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जरूर जेवर का मुझे अब क्या करना है? मैं खुद को किसके लिए हरासा करूं? यूजासीफ के लिए? तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते? क्या तुम आमून मिस्रियों के खुदाए अजीम नहीं हो? क्या मैं तुम्हारे माबूद की देवी, तुम्हारी हमसर नहीं हूं? आखिर कब तक सिर्फ यूं ही तमाशाई बने रहोगे? कोई तो मेरी मदद करे। आखिर ये जिल्लत तुम्हारी कब तक, ये दर्द और गम कब तक? यूजासिफ से दूरी का गम, कारी मामा की मौत का गम, अपनी जवानी गंवा देने का गम, या अपने मालूम मता बर्बाद हो जाने का गम। ए अम्मून, मेरी मदद फरमा। हौसला कीजिए बानो। यूजासिफ, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। यूजासिफ, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। नाम क्या है आपका? कुछ बोलते क्यों नहीं? कौन है? आप मुझसे क्या चाहते हैं? क्या हुआ है नबी खुदा? फिर उसी बूढ़ी औरत को देखा है। वो मुझसे मदद तलब कर रही थी, लेकिन मैं नहीं जानता वो कौन है। यानी मैं उसे कहाँ तलाश करूं? ख्वाबों के इसरार और रमूज नबी खुदा से पोशीदा नहीं है। अगर उस ज़ईफा का चेहरा वाज़ेह तौर पे दिखाई नहीं दे रहा और आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं, तो यकीनन इसमें कोई नसीहत खुदावंदी होगी। वो हाथ फैलाए मदद तलब कर रही थी। अगर वो जरूरतमंद होती तो खुदावन उसकी जानिब आपकी रहनुमाई जरूर कर देता।
आखिर ये जरूरतमंद औरत कौन है, कहाँ की रहने वाली है, किस शहर से ताल्लुक है, मैं उसे कहाँ तलाश करूं? खुदावंद, मबादा ये बेखबरी मेरी खता शुमार न की जाए और उसके बाबत मेरा मुआखजा न किया जाए। मिस्र का इख्तदार संभालने के बाद से जनाब युजार सीफ ने कभी पेट भर खाना तनावल नहीं किया। उन्हें डर रहता है कि कहीं उनसे ज्यादा इस शहर में कोई भूखा ना हो और इनकी शिकम सहरी भूखे लोगों से इन्हें गाफिल न कर दें। बानो, क्या हुआ आपको? बानो, आली जनाब। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? आली जनाब, दाई को बुलवाई है। जरा तहम्मुल से काम लीजिए बानो, दाई अभी आती ही होगी। मालिक दाई को लेने गया हुआ है। अब आसनात कैसी है? दर्द की शिद्दत से तड़प रही है। अभी दाई आ जाती है। आप जाएं और गर्म पानी का इंतजाम करें। दरूद हो अजीज़े मिस्र जनाब युजार सीफ पर। आप पर भी खुदाबंद का दरूद हो। फिक्र मत कीजिए आली जनाब, मुझ पर भरोसा रखिए। बानो असनाद कहाँ हैं? मेरे साथ आइए। जी। आली जनाब, आपको बेटी की आमद मुबारक हो। अपने माँ बाप की तरह बहुत खूबसूरत है।
हासनात की हालत कैसी है? वो ठीक तो है ना? दोनों सही सलामत हैं। यकीनन इसके कदम निहायत मुबारक हैं जनाब युजारसिफ। जनाब युजारसिफ, अक्सर मैं आपकी गधे में पड़ी इस मोहर की तरफ मुतवज्जा हुआ हूं और इस मोहर के लम्स के बाद आपके इत्मीनान का मुशाहिदा भी किया है। आखिर ये क्या है? ये एक ऐसी मोहर है जिस पर लफ्ज मौऊद कुंदा है। मौऊद? वही जो तमाम अंबिया के अहदाफ को मुकम्मल करेंगे और तमाम फरस्तादगान खुदा की आरजुओं को बदलाएंगे। काश मेरे पापा यहाँ होते और मेरी पहली औलाद को देखते। बाबा मैं अकेले ही गले की देखभाल कर लेता, आपने जहमत क्यों की? आप अपने हुजरे ही में आराम फरमाते। इस तवील रास्ते और धूप की तमाजत से आपको तकलीफ नहीं पहुंचती? नहीं बेटा, फितरत की रानाइयों में जमाले खुदाबंदी का नजारा करना मेरी रूह को तस्कीन बख्शता है। बाबा आज आप काफी खुश नजर आ रहे हैं। हाँ मेरे बेटे, मालूम नहीं क्यों मेरा ख्याल है शायद आज यूसुफ भी बहुत खुश है। खुश आमदीद मेरी बेटी। आज से तुम्हारा नाम मिनसा है, यानी भला देने वाली। तुम्हारे आते ही तुम्हारे बाबा अपने तमाम गम भूल गए। मिनसा की आमद की खुशी में तमाम गुरबा और फुकराए मिनफीस में खाना तकसीम करवाएं। तामा, मैं तियामीनी हूं बानो। जाने क्यों सही दिखाई नहीं दे रहा, सब कुछ धुंधला नजर आ रहा है। ये कसरत गिरिया की वजह से है बानो। आप क्यों इतनी गिरिया जारी करती हैं? इतना रोने से आपकी आंखों की बिनाई भी मुतासिर होगी और चेहरे की शादाबी भी। कुछ अपनी सेहत का ख्याल कीजिए। अब इन बातों का वक्त गुजर चुका, ये गिरिया ही मेरे जख्मों का मरहम है। अगर मैं ये गिरिया ना करूं, दीवानी हो जाऊं। क्या हुआ? अब कहाँ जा रही हैं बानो? यही जरा लंगरगाह तक मेरे हमरा चलोगी? जरा रोदामुन से पूछूं, शायद युजारसिफ की कोई खबर फिर जाए। अब मैं आपको रोकने से तो रही बानो हुजूर, और ना ही मैं आपको तन्हा छोड़ सकती हूँ, लिहाजा आपकी हमराही करने पर मजबूर हूँ। दुरूद बर बानो जुलेखा। क्या तुम्हें रोदामुन का कुछ पता है कि वो कहाँ मिलेगा? शामात, वो जनाबे होरम हूब के हमरा। पता है कब तक वापस लौटेंगे? नहीं, मालूम नहीं बानो।
बानो उठिए, आपका यहाँ बैठना मुनासिब नहीं है। तमाम लोग आपको पहचानते हैं। तुम्हें हमारी बेइज्जती का खौफ है। क्या कोई इज्जत बाकी रह गई है? मेरी रुसवाई की दास्तान हर जगह आम हो चुकी है। जुलेखा युजार सीप के इश्क में बिल्कुल ही दीवानी हो चुकी हैं। अगर हम उन्हें युजार सीप की कोई खबर दें तो मेरा ख्याल है कि वो हमें एक बड़ा इनाम जरूर देंगे। हाँ। फिर तो हमें अपनी आंखें खुली रखनी होंगी ताकि युजार सीप की आमद से हम दोनों बेखबर ना रह जाएं। हाँ। बेचारी जुलेखा। यकीन नहीं आता कि मिस्र के हसीन तरीन खातून पर यह वक्त भी आ सकता है। युजार सीफ के इश्क ने उनकी ये हालत की है। इन्हें मालूम है कि युजार सीफ ने शादी कर ली है? मैं तो कहती हूँ कि कभी ना पता चले, वरना ये दुख तो उनकी जान ही ले लेगा। शायद जानती हूँ, लेकिन उन्हें कोई फर्क ही ना पड़ता हो। अगर जुलेखा को कोई फर्क ना पड़ता होता तो आज वो इस हालत तक ना पहुंचती। अपनी अपनी जगह संभाल लो, आमादा हो जाओ। कसर फरमारवा के बासलाहियत सिपाही कैसे हैं? के पास गुजार हैं अली जनाब। मेरे साथ आइए। खैरियत अजीज मिस्र जनाब युजार सीफ, अचानक इस वक्त कैसे तशरीफ लाए हैं? अभी मालूम हो जाता है। बेनारूस और कसर के खानसामा को मेरे पास भेजो। बेनारूस और खानसामा को खबर करो। इत्ताद। तमाम मशले रोशन कर दें। सिपाही जल्दी करो, तमाम मशले रोशन कर दो। अगर इजाजत मरहमत फरमाए तो जनाब फरमारवा को बेदार किया जाए। रहने दे, इसकी जरूरत नहीं। अभी वो खुद ही बेदार होने वाले हैं। उन्होंने बताया नहीं कि मुझे क्यों बुलाया है? नहीं, बस फरमाया कि जल्दी करें। दुरूद बर अजीज मिस्र जनाब युजार सी। आप पर भी खुदावंद का दरूद हो। कितनी बार समझाया है कि मेरे सामने ताजीमन मत झुका करें। गालिबन जब तक कोड़े नहीं पड़ेंगे आपकी ये आदत जाएगी नहीं। इताअत आली जनाब, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। जनाब फरमारवा के लिए तमाम मशरूबात का फौरी इंतजाम करें। इतनी रात गए? हाँ, अगले चंद ही लम्हों में जनाब फरमारवा को भूख लगेगी और वो खाना तलब करेंगे। लेकिन अब तक तो ऐसा नहीं हुआ। आप मुतमईन हैं कि जनाब फरमारवा? जब जनाब युजार सी फरमा रहे हैं कि फरमारवा को भूख लगेगी तो लगेगी। जल्दी कीजिए, ज्यादा वक्त नहीं रहा। मुशीरों और दीगर साकनीन कसर को भी खबर कर दें। मैं चाहता हूं कि सब मौजूद हों। मेरे पास खाली शहद और खुरमे की शीरे से तैयार करदा शरबत मौजूद है। रात का कुछ खाना बाकी है, अगर कुछ ताजा मेवे इजाफा कर दूं तो काफी होगा। हाँ, काफी होगा। फरमारवा इतनी रात गए, इससे ज्यादा तनावुल भी नहीं फरमाएंगे। ये आवाज सुनी? फरमारवा ने बुलाया है। ये कैसी बेमौका भूख है। पहले तो कभी ऐसी भूख नहीं लगी। अचानक इतनी भूख कैसे लग गई? कहीं आपकी तबीयत तो नासाज नहीं हो गई? अगर आप कहें तो सेनोहा को बुलाऊं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मैं जानता हूं कि ये दर्द और ये कमजोरी सिर्फ भूख के बायस है। दरूद बर फरमारवाए हकीम मिस्र और बानू नफरती तीर पर। अजीज मिस्टर यहाँ क्या कर रहे हैं?
आप कब तशरीफ लाए? जनाब फरमारवा को भूख नहीं लगी? इतनी शदीद के बस भूख से मरने की देर है। लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ? आज रात मिस्र को दरपेश 7 साल कहत की शुरुआत है और उसकी अलामत जनाब फरमारवा को यूं अचानक बेवक्त भूख लगना है। आपको कैसे मालूम हुआ? आप तो मेम्फिस के दौरे पर गए हुए थे। आपने इतना तवील रास्ता इतनी जल्दी कैसे तय कर लिया? ये सब बाद में अर्ज करूंगा। जनाब फरमारवा ग़िज़ा तनावल नहीं फरमाएंगे? गोया कोई चीज आपसे पोशीदा नहीं है। आपने तो हर चीज का पहले ही एहतमाम कर लिया। मिस्र में 7 साल कहत की आज से शुरुआत हो गई है और कल से मर्द में मिस्र को किफायतशुमारी से काम लेना होगा। मैं इसीलिए खिदमत में हाजिर हुआ हूं ताकि ये खबर आपको दे सकूं। और जो भी मुनासिब समझिए वो कीजिए। हम खुदाबंद मताल से मुल्तमिस हैं कि वो हमारी मदद फरमाए ताकि हम कहत जैसे संगीन बहरान पर बखूबी काबू पा सकें। अजीब बात है, मुझे भी भूख महसूस हो रही है। ताज्जुब है जनाबी युजारशीद, मुझे भी शदीद भूख लग रही है। जिस तरह हम सबको भूख महसूस हो रही है, क्या तमाम अहले मिस्र को भी? कहाँ शुरू हो गया ये बात, लोगों को कैसे मालूम होगी? सब लोगों को खुद ही मालूम हो जाएगा। जमीन के बंजर हो जाने और बारान रहमत के न बरसने और काश्तकारी की ममानत के ऐलान से बिलाखिर सब समझ ही जाएंगे। जब भी गंदम की तहवील के लिए आए उनसे कहिएगा कि फकत सालाना जरूरत की गंदम अपने पास रखें। रकम पाशी के लिए अब गंदम की जरूरत नहीं। तमाम शहरों में ऐलान करवा दिया जाए कि चूंकि अब 7 साल तक बारिश नहीं बरसेगी, लिहाजा मजीद काश्तकारी न करें और न ही तख्म पाशी की जरूरत है। मामूरीन से कहिए कि हर शहर के सरवतमंद और जरूरतमंद अफराद की मुकम्मल और दकीक फहरिस्त तैयार करें, क्योंकि ये दोनों तबके मसावी मुस्तहिक नहीं। लिहाजा हमें मालूम होना चाहिए कि कहत के जमाने में किसको कितनी मिकदार में मुफ्त गंदम फराहम की जाए और किसे कीमत के एवज गंदम दी जाए, यानी किसे हमें बख्शना है और किसे हमें फरोख्त करना है।